Hello everyone. Now today we are going to start the main topic of this chapter, that is Gauss theorem. Previously we have already learned about the area vector, the electric field. Okay, in the part 1 we have studied about electric fields and electric field at a point because of a point charge, because of a dipole, torque and everything. From this chapter onwards, chapter 2, we have studied the area vector, the solid angle, electric flux, the field lines that are passing through any surface. So after all this, now we are going to give or to learn the theorem given by Gauss theorem, which states that the electric flux phi through any closed surface, that means we are talking about 3D surfaces, कि किसी भी 3D surface से जो भी electric flux है उसको हम और भी क्या लिख सकते हैं, that can be written as 1 upon epsilon naught times मतलब multiplication the net charge enclosed by that surface. Say there is a 3D object, इसमें प्लस Q चार्ज प्रेजेंट है ना, और Q1 चार्ज प्रेजेंट है. ओके, सो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर दिस क्लोज्ड सरफेस इज 1 upon epsilon naught टाइम्स ऑफ Q1. ओके, जो भी वैल्यू होगी 5 कूलम, 10 कूलम, 100 कूलम, वॉट एवर इट इज. ओके, ये फॉर्मूला तो हमने ऑलरेडी पढ़ा ही हुआ है. ठीक है, this we have studied in electric flux already, that electric flux through any surface, either 2D surface or 3D surface, is written as whole integral. है ना, ये जो साइन बनाते हैं that means whole integral of the surface. closed surface में हमेशा हम इस तरह से साइन बनाते हैं, normal surface में हम सिर्फ, है ना, कोई 2D अगर surface है तो हम वहाँ पे इस तरह से लिख लेते थे. ठीक है, अगर 3D ऑब्जेक्ट है तो इंटीग्रल का साइन एंड अ स्मॉल सर्कल. E डॉट डी ए ये तो पढ़ा ही था. दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज कॉल्ड एज द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस theorem. Now this is an important point, this relation, this is the integral form of Gauss theorem. It sometimes is asked in your question papers in 1 marks. Now for proving, ये तो एक condition बता दी गई, लेकिन यहाँ से यहाँ तक how we have got this formula, that now we are going to learn proving. It's a very easy proving. For that we are supposing here a closed surface which is containing a point charge Q at point O inside this closed surface, and dA ये एक छोटा सा surface हमने मान लिया है, एक 3D surface है. ठीक है, 2D surface नहीं है, 3D surface है पूरा. ठीक, एक छोटा सा element मान लिया है, that is dA. okay, sorry, not this, dA, and this dA इसका मिड पॉइंट है ये P, छोटा सा पॉइंट P. ओके, नाउ एज वी नो कि अगर हमारे पास कोई भी ऐसे इस तरह से कोई भी सरफेस है, इरेगुलर शेप सरफेस और एनी सरफेस, द एरिया वेक्टर विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस. ठीक है, तो हमने एक एरिया वेक्टर ड्रॉ कर लिया. सिमिलरली द इलेक्ट्रिक फील्ड at point P, the electric field at point P, due to the charge, this positive charge Q will be away from this positive charge. This we have studied कि positive charge से हमेशा किसी point पर electric field, अगर इस point पे हम बात करें तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, छोटा सा test charge. Now since both these charges are positively charged, तो electric field किधर है, बाहर की तरफ, positive charge से दूर जाती हुई. This is the source charge, this is the test charge. Same is the condition here. ठीक है, the electric field at point P due to this point charge plus Q is outwards like this, and the angle between this area vector and electric field is say theta. Okay, now for the total normal electric flux मतलब perpendicularly जो भी इसमें से field lines निकल रही हैं, ठीक, इस इतने छोटे से एलिमेंट के लिए अभी बात कर रहे हैं. ओके, फॉर ओनली दिस स्मॉल एलिमेंट, तो बहुत छोटा सा सरफेस है, तो कम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस, है ना, कुछ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इस छोटे से सरफेस से पास हो रही हैं बाहर की तरफ. देयरफॉर फाई ना लिख के हमने क्या लिखा है, डी फाई, स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ओके, दिस विल बी लाइक दिस, नॉर्मल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला हमने पूरा कॉपी कर लिया. ठीक,
E dot dA. E dot dA, that is a scalar product. A scalar product can be written as E dA into cos theta. Okay, now if we talk about the total normal electric flux, for that we need integration. Okay, we will get to that point later on. इसी फॉर्मूले में हम और क्या लिख सकते हैं, E की वैल्यू, द इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर. ओके, Q वेयर इज द सोर्स चार्ज, ओके, इंटू DA इंटू कॉस थीटा. ठीक, तो E की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी है. नाउ इफ वी रीअरेंज द वेरियस टर्म्स, DA cos theta upon R square we have taken on one side and this term separately. Okay, now this we already know is the formula for the small solid angle. इस area vector, this small area element has subtended an angle d omega at point O, जहाँ पर ये चार्ज रखा हुआ है. ठीक, सो दिस टर्म इज रिप्लेस्ड बाय डी ओमेगा, दैट इज द सॉलिड एंगल बिटवीन दिस सरफेस एंड द पॉइंट चार्ज हियर. ओके, नाउ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हम बात जब करेंगे, यहाँ पे तो हमने छोटा सा एलिमेंट लिया था. टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब इस पूरे सरफेस से कितनी फील्ड लाइंस जा रही होंगी. ठीक है, फॉर दैट what we have to do, we have to find the surface, the closed surface integral. okay, तो पूरे के पूरे surface का अगर इंटीग्रल निकालना है, सारे जितने भी ऐसे छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट्स मिलेंगे सबको इंक्लूड करना है. ओके, सो फॉर दैट वी आर यूजिंग दिस इंटीग्रल साइन 1/4 पाई. फॉर्मूला पूरा यही है, बस दोनों तरफ हमने क्या कर दिया है, सरफेस इंटीग्रल. ओके, दिस आई विल राइट हेयर. ये यहाँ पे था डी फाई ए, है ना, स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्मॉल सरफेस हेयर. ओके, दोनों तरफ इंटीग्रल लिया, तो इधर एक इंटीग्रल का साइन, इधर एक इंटीग्रल का साइन. ये पूरा टर्म आपका क्या बन गया, ओवरऑल फाई ई, है ना, टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस. एंड यहाँ वाला टर्म ऐसे ही कॉपी कर लिया. नाउ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज अ फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यू, इट कैन बी टेकन आउटसाइड फ्रॉम द इंटीग्रल साइन. Q, दैट इज ऑल्सो अ कांस्टेंट वैल्यू, कुछ फिक्स्ड अमाउंट होगा, 5 कूलम, 10 कूलम, anything like that. So the constant terms we have taken out of this integral sign, we are left with d omega. Okay, now also in the topic solid angle we got to know कि किसी भी closed surface में d omega जो solid angle की value होती है, that is 4 pi. okay, that we have seen already. तो इस पूरे की वैल्यू हमने उठा के रख दी. ठीक है, 4 पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है. ठीक है, तो उसको भी हम इंटीग्रल से बाहर निकाल लिया, तो हमारे पास केवल एक न्यूमेरिकल वैल्यू बची है. नाउ दिस 4 पाई इज कैंसल्ड आउट एंड वी हैव गॉट फाई इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी. ठीक है, फॉर एनी क्लोज सरफेस द सॉलिड एंगल वैल्यू इज 4 पाई. दैट मीन्स एक तो हमारे पास रिलेशन था ही, दैट फाई कैन बी रिटन एज overall surface integral E dot dA, and from here this relation we have also got that phi can also be written as Q upon epsilon naught. So this is the proving for the Gauss theorem.